हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिसेस में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और अभी तक हमने जो भी थियरी पार्ट कंप्लीट किया है टिल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, वो लेवल तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी चैप्टर का और भी थियरी पार्ट आना बाकी है और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पे हमको जाना है। तो ये मैंने थोड़ा थियरी पार्ट कंप्लीट करके थोड़े कुछ एक्सरसाइज तक का हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड लेटर ऑन वी विल टेक फर्दर एक्सरसाइज आफ्टर फिनिशिंग थियरी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने तीन मैट्रिसेस अवेलेबल है, मैट्रिक्स ए, बी एंड सी। तीनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है, 3/2। यू कैन नोटिस this is of order 3/2. This is also 3/2. This is also 3/2. Now what they are asking, show that number one, a plus b is equals to b plus a. So show that करना है हमें। First, a plus b is equals to b plus a. So let me first take left hand side, that is a plus b. That is, what is a? 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1, plus matrix B, minus 1, 2, 2, 2, 0, 3। स्टार्टिंग में वही मैंने मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखे हैं, उससे ये भी पता हमें चलता है कि सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्सेस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जिसका है ये हम कर सकते हैं। सो हियर वी कैन ऐड बोथ दिस matrix and you have to add corresponding elements. So it will be 2 plus minus 1, minus 3 plus 2, 5 plus 2, minus 4 plus 2, minus 6 plus 0 and 1 plus 3। तो corresponding element का addition हम करेंगे and thereby as a result we are going to get 2 plus minus 1, that is 2 minus 1, that is 1, minus 3 plus 2, minus 1, 5 plus 2, that is 7, minus 4 plus 2, minus 2, minus 6 plus 4, 0, minus 6, and 1 plus 3, that is 4. So this is what our LHS matrix we have generated. This will be number 1. And now I will be finding RHS, that is B plus A. और स्टूडेंट ऐसे भी ये एडिशन की प्रॉपर्टी से हमने देखा है कि a प्लस बी या b प्लस a करो आंसर सेम आने वाला, बट हियर वी हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। minus 1, 2, what is b? minus 1, 2, 2, 2 and 0, 3 plus a matrix is 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1.
Okay, so you can do it directly also. Now no need to write down addition, just you can conclude what will be the answer. Minus 1 plus 2, that is positive 1. 2 plus minus 3, that is 2 minus 3, minus 1. 2 plus 5, 7. 2 plus minus 4, that is 2 minus 4, that is minus 2. 0 plus minus 6, 0 minus 6, that is minus 6. And 3 plus 1, that is 4. So this is your right hand side matrices, which is exactly going to come with the left hand side matrices. You can notice. So you write here from 1 and 2, A plus B is equals to B plus A. Hence proved. Let's take second one, that is A plus B plus C is equals to A plus bracket B plus C. Students, this particular question, in which first LHS we will do A plus B in a bracket plus C. So first we will A plus B, and that whatever the answer will come, we will add with that matrix C. Okay, take down what is A. 2 minus 3, 5 minus 4, minus 6, 1. And B matrix is minus 1, 2, 2, 2, 0, 3. And C matrix is 4, 3, minus 1, 4, minus 1, 4, minus 2, 1. ओके, सो पहले ये दो मैट्रिसेस ऐड होके मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगा. 2 plus minus 1, 2 minus 1, that is 1. Minus 3 plus 2, minus 1. 5 plus 2, 7. Minus 4 plus 2, minus 2. Minus 6 plus 0, minus 6. 1 plus 3, 4. And now this should be added with matrix C. 4, 3, minus 1, 4, minus 2, 1. Students, as a result, it will be 1 plus 4, this is 5, minus 1 plus 3, 2, 7 plus minus 1, that is 7 minus 1, that is 6, minus 2 plus 4, that is plus 2, minus 6 plus minus 2, minus 6 minus 2, that is minus 8, and 4 plus 1, that is 5. So this is what your LHS. Now RHS, and that is A plus B plus C, A plus bracket B plus C. So I will write matrix A first plus this B plus C I will do first, and that whatever the answer will there, I will add with A. So what is A? 2 minus 3, 5 minus 4, 2 minus 3,
5 minus 4 minus 6 1. What is B? Minus 1 2 2 2 0 3, and the C1 is 4 3 minus 1 4 minus 2 1. So now first you have to solve your bracket. So this will remain as it is, 2 minus 3 5 minus 4 minus 6 1 plus minus 1 plus 4, that is plus 3, 2 plus 3 5, 2 plus minus 1 2 minus 1, that is 1, 2 plus 4, that is 6, 0 plus minus 2 0 minus 2 minus 2, and 3 plus 1, that is 4. And now I will add both these matrix to conclude 2 plus 3 5 minus 3 plus 5 2, 5 plus 1 6 minus 4 plus 6 plus 2 minus 6 plus minus 2, that is minus 6 minus 2 minus 8, and 1 plus 4, that is 5. So as a result, this is your RHS matrices. And now you can notice from 1 and 2 both are same. So from 1 and 2, LHS is equals to RHS, that is whatever we have proved, A plus B plus C is equals to A plus B plus C, like this. So this way, students, we are calculating addition, and these are the properties. So this way we have solved both this A plus B is equal to B plus A, that is first one. And student, if you revise my theoretical lecture, this particular first one, what we have proved, this particular part is explained under commutative law, that is commutative principle, and that is property under which we have done this particular. So ये चीज हमने थियोरी में समझा है, even though they have asked under this एक्सरसाइज क्वेश्चन के फॉर्म में आपको पूछा गया है. एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, इसी को इन लोग तीनों तीन मैट्रिक्स दे के बोलते हैं, सपोज प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ, प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ. तो आपको कम्यूटेटिव लॉ ये मालूम होना चाहिए. यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, वो कम्यूटेटिव लॉ सामने आपके बता दिया, ये प्रूव करना है. बट इफ दे आर आस्किंग टू प्रूव कम्यूटेटिव लॉ, तो आपके लिए ये याद रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ क्या है वो जो पता है तो आप आगे का काम प्रूव करने का करेंगे, नहीं पता है तो कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलेंगे, बोलो. तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है मालूम होना चाहिए. उसी तरह से जो सेकंड में हमने ये जो प्रूव किया है, अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक एक इन लोग प्रॉपर्टी ही पूछ ले रहे हैं. तो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट मालूम हो तो हम प्रूव कर पाएंगे. जो उन लोग स्टेटमेंट दे देते हैं तो आई डोंट माइंड, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो जरूरी नहीं समझना कि स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको, स्टेटमेंट दिया ही होगा आपको. They may ask, now this one is which particular property? This is our
associative law. Do remember, they can just give you as to prove associative law under these three matrices which they have given. The matrices will be given और आपको नीचे दिया गया रहेगा कि associative law प्रूव करो. तो associative law क्या है ये आपको पता होना चाहिए ना. इसीलिए थियरी में ये मैंने पूरे प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीटली चर्चा लिया है, वो आप ध्यान रखना और याद रखना. चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. चलिए, व्हाट इज गिवन? इफ A is a square matrix of order 2 and B is also given a square matrix of order 2, then find the matrix A minus 2B plus 6I. ये आपको प्रूव करना है स्टूडेंट. Where I is the unit matrix of order 2, unit matrix or you can say identity matrix. ठीक है स्टूडेंट्स. चलिए, हमें गिवन है मैट्रिक्स A 1 -2 5 3, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. और बी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का 1 -3 4 and -7. Okay, so these are two square matrix given and we have to find A minus 2B plus 6I. ओके, और ये स्टूडेंट ध्यान रखना, इन लोगों ने जो I दिया है वो उन लोग I2 करके भी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. व्हाट डज इट मीन I2? मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. समझ में आ रहा है? ये I2 लिखा है, ये तो पता चलता है ऑर्डर के हिसाब से नीचे 2 लिखा है. ठीक है, सो दे मे मेंशन लाइक दिस. तो ऊपर क्या ये यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इस तरह से बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, जस्ट दे रिप्रेजेंटिंग विथ I2. तो आपने को समझ जाना है. तो दोनों तरीके से आपको मालूम हो गया, एनी मेथड दे यूज आपको पता है. सो नाउ वी नीड टू solve and find this particular matrix. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. This is the A matrix minus 2 into this B plus 6 into this identity matrix I. So what is A? 1 minus 2 5 3. What is 2 into B? मतलब B was the matrix कौन सा है? 1 minus 3 4 minus 7. स्टूडेंट्स ये आप देख रहे हैं, तो B को 2 से जो मल्टीप्लाई किया है इसको हम बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. किया था ना हमने थियरी में. समझ में आ रहा है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या था कंसेप्ट? कोई एक कांस्टेंट है उसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. Similarly, that 6I is also the same thing, scalar multiplication, that is 6 into I identity matrix 1 0 0 1. ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स. ये आपने सबने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स मतलब ये सीखा है सब. लेट अस नाउ स्टार्ट सॉल्विंग फर्दर. चलिए, पहला ये जो ए मैट्रिक्स है वो तो एज इट इज है, तो अपना सेम रहेगा. हाउ टू डू दिस स्केलर मल्टीप्लिकेशन यू नो, सब थियरी में प्रॉपरली हुआ है. अब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं ध्यान से, एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए जो हमको काम में आ रहा है. So this 2 which we have to multiply with each and every element of that matrices.
So 2 into 1, 2. 2 into minus 3, minus 6. 2 into 4, 8. 2 into minus 7, minus 14. स्टूडेंट, इसके बाद ये 6 को भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. 6 into 1, 6, 6 into 0, 0, 6 into 0, 0, 6 into 1, again 6. So this is done. अब देखो स्टूडेंट, जो पहले दो मैट्रिक्स है उसके दोनों का बीच का क्या है, सब्ट्रैक्शन है. तो सबसे पहले हम पहले दो मैट्रिक्स को यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. और एक बात ध्यान रखना, वापस से वो थियोरी याद आ रहा है कि दो मैट्रिसेस आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कभी कर सकते हैं जब भी दोनों के ऑर्डर सेम हो. तो देखो ना, सभी मैट्रिसेस के ऑर्डर 2x2 के ही हैं. सो नाउ वी कैन डू दैट. सो वन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपको कैलकुलेशन में लेना है. सो 1 minus 2 minus 1, minus 2 minus 6. देखो मैं रफ में कर रहा हूँ यहाँ पे. -2 को पहले से ये है ही, बीच में माइनस है, और अगेन ये -6 है. So what I am writing like this in the bracket. So what will be the conclusion? -2 plus 6, and that becomes +4. ओरली होता नहीं तो रफ में इस तरह से कर सकते हैं, +4, बट गलत नहीं होना चाहिए. प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट, 5 minus 8 minus 3, and 3 minus 14, that is 3 plus 14, that is 17. प्लस माइनस का साइन का प्रॉपरली ध्यान रखने का है. नेक्स्ट, प्लस जो आगे का मैट्रिक्स है, दैट यू टू राइट नाउ एज इट इज, एंड फाइनली बोथ ऑफ दिस मैट्रिसेस यू टू ऐड. सो अगेन एडिशन इज पॉसिबल, ऑर्डर्स दोनों के सेम है. सो दिस विल बी -1 plus 6, that is 5. 4 plus 0, 4. 3 -3 plus 0, -3 plus 0, -3. And 17 plus 6, 23. So this is the final answer that we got regarding a minus 2b. Hence a minus 2b plus 6i, this matrix we got this one, 5, 4, -3, 23. Students, इस तरह से हम लोग कुछ भी आपको एक्सप्रेशन बना के मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, यू हैव टू प्रॉपरली डू दैट. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी कंसेप्ट आ जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी कंसेप्ट आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी इन्वॉल्व करने के लिए आना है. सो वेरियस थिंग्स दे आर कवरिंग विद दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके स्टूडेंट्स, so this is done. Question number 2. Okay, fine. Students, coming to the question number 3. They have given matrices, matrix A and matrix B of order 3x3. दोनों के दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर के हैं. Then find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. स्टूडेंट्स, आपको पहले से बोल दिया है कि A plus B plus C करके जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा. सो वी विल स्टार्ट विथ गिवन. They have given matrix A 1, 2, -3, -3, 7, -8, 0, -6, 1. And B matrix 9, -1, 2,
-4 2 5 4 0 -3. Also given a plus b plus c is equals to O, that is 0 matrix. Okay, so we will substitute a के जगह पे a का मैट्रिक्स 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1 plus b matrix 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3 plus c जो as it is रहेगा because that matrix we have to find out and 0 matrix के हिसाब से each element must be 0. स्टूडेंट एक बात थोड़ा आपसे कॉमन सेंस वाला मैं एक्सपेक्ट करूंगा जबकि ये 0 मैट्रिक्स बोला है तो 0 मैट्रिक्स आपको ये 3x3 ऑर्डर का ही लेने का. What is the reason behind that? That they have already given A and B matrices of that order 3x3 and hence by default that 0 matrix is also to be considered of that same order. Okay, so now we will simplify this. First this A plus B will add 1 plus 9 10 2 plus -1 2 -1 -3 plus 2 that is -1 -3 plus -4 that is -3 -4 -7 7 plus 2 that is 9 -8 plus 5 -3 0 plus 4 4 -6 plus 0 -6 and 1 plus -3 that is 1 minus 3 -2 plus C is equals to 0 matrix. Okay, fine. So our next step in which first of all देखो ये C तो है लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज रहेगा. अब हम क्या करेंगे जो मैट्रिक्स है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो अभी फिलहाल ये मैट्रिक्स प्लस में है, राइट हैंड साइड जाएगा वो माइनस हो जाएगा. तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में ये 0 मैट्रिक्स है जो एज इट इज रहेगा माइनस this matrix will be shifted to right hand side, so it becomes minus and then ये subtraction का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. so 0 minus 10 minus 10 0 minus 1 minus 1 0 minus minus 1 plus 1 0 minus minus 7 plus 7 0 minus 9 minus 7 0 minus minus 3 plus 3 0 minus 4 minus 4 0 minus minus 6 that is 6 and 0 minus minus 2 that is plus 2 and as a result students we got this matrix C. So this type of questions ये आपको ऐसे मैट्रिक्स ढूंढने के लिए बोल सकते हैं
जो सी मैट्रिक्स यहाँ अपन को ये एक्सप्रेशन दिया और आपको पूछा गया भाई सी मैट्रिक्स ऑब्टेन करिए, वेर ए एंड बी मैट्रिसेस वेर गिवन एंड ओ इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये सबको हमको इन्वॉल्व करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है ताकि यू विल गेट मैट्रिक्स सी। स्टूडेंट्स, इसका एक मेथड है। सी मैट्रिक्स को सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, तो मैं सेकेंड मेथड आपको बताता हूं। लेट मैट्रिक्स सी बी। ओके, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करके मैंने 9 एलिमेंट्स जो है 3 by 3 ऑर्डर का ये जो सी मैट्रिक्स इसका मैंने अज्यूम कर लिया है। अब टेकिंग दिस assumed matrix along with this A, B and 0 matrix in this V1, मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं। सो A plus B plus C is equals to 0 मैट्रिक्स है, A plus B plus C is equals to 0 मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स अभी ही मैंने एज्यूम किया, और ए बी मैट्रिक्स 1 2 -3 -3 7 8 -8 0 -6 1। बी मैट्रिक्स है 9 -1 2 -4 2 5 एंड 4 0 -3। तो एक साथ ये तीनों मैट्रिक्स को आप एडिशन कर लीजिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो 1 plus 9 plus 8, 1 plus 9 that is 10 plus 8, ये पहला एलिमेंट हो गया। सेकेंड एलिमेंट 2 plus -1 that is 2 minus 1, 1 plus b, then -3 plus 2 that is -1 plus c। Next, second row -3 plus -4 that is -3 -4 -7 -7 plus d, then 7 plus 2 9 9 plus e -8 plus 5 -3 plus f, then third row 0 plus 4 plus g, that is 4 plus g। Next, -6 plus 0 is -6 plus h, and 1 plus -3 that is 1 -3 -2 plus I,
ये हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे ये मैट्रिक्स मिला और राइट हैंड साइड में जो मेरा मैट्रिक्स ऑलरेडी है, दोनों के ऑर्डर 3 by 3 के हिसाब से सेम है, which means that by equality of matrices concept, ये हमने एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के अंदर आगे थियरी में देखा है। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स का जो ऑर्डर सेम है, तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल बता सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल बता सकते हैं। So we can show first comparison as a first element 10 plus a is equals to 0. Therefore, a is equals to minus 10. सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपैरिजन लेंगे तो 1 plus b is equals to 0. Therefore, b is equals to minus 1. फिर थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, -1 plus c is equals to 0. Therefore, c is equals to 1. उसके बाद -7 plus b is equals to 0. Therefore, b is equals to 7. उसके बाद a 9 plus, this is 9 plus e is equals to 0. Therefore, e is equals to minus 9. Then minus 3 plus f is equals to 0. Therefore, f is equals to 3. Then 4 plus g is equals to 0. Therefore, g is equals to minus 4. Then minus 6 plus h is equal to 0. Therefore, h is equals to 6. And minus 2 plus I is equals to 0. Therefore, I is equals to 2. So, with the help of these elements, okay, A, B, C, D, E, F, G and H, I, those 9 elements, we are going to make our matrix C, which we have assumed as A, B, C, D, E, F, G, H, I, which will be -10, -1, 1, 7, -9, 3, -4, 6, 2. This way, we can find out this matrix C, and that is the same matrix what we had generated in the first method. So this way you may assume elements and calculate this way, and otherwise the first method is convenient. सीधा आपको मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा. Moving towards next problem, question number
fourth. This is same type of question, खाली आपको ऑर्डर अलग दिया है तीनों मैट्रिक्स के। 3/2 के ऑर्डर में तीनों मैट्रिक्स आपको अवेलेबल किया है ABC, एंड फाइंड द मैट्रिक्स X सच दैट, ये इक्वेशन आपको देके रखा है। ओके, so you have to substitute your matrices in this equation given. Matrix A 1 minus 2 3 minus 5 minus 6 0. B matrix minus 1 minus 2 4 2 1 5. C matrix 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6, and 3A minus 4B plus 5X is equals to C. तो यहाँ हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए जो है 1 minus 2 3 minus 5 minus 6 0. B matrix is minus 1 minus 2 4 2 1 5. X को ढूंढना है, एज इट इज लिखा रहेगा, और C मैट्रिक्स जो दिया है 2 4 minus 1 minus 4 minus 3 6. तो देखो यहाँ ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुआ है। 3 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 4 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन टू बी डन विथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 3 into 1 3, 3 into minus 2 minus 6, 3 into 3 9, 3 into minus 5 minus 15, 3 into minus 6 minus 18, and this is 0. यहाँ पे भी 4 को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, -4 -8 16 8 4 20. राइट हैंड साइड एज इट इज। अब यहाँ पे इसको दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो with corresponding elements। 3 minus minus 4, that is 3 plus 4, minus 6 minus minus 8, minus 6 plus 8, 9 minus 16, minus 7, minus 15 minus 8, 23, negative 23, minus 18 minus 4, minus 22, and 0 minus 20, minus 20.
बाकी सब एज इट इज। अब ये मैट्रिक्स को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 5x, राइट हैंड साइड ऑलरेडी वी हैव दिस मैट्रिक्स 2 4 -1 -4 -3 6, और ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वो प्लस था, तो 7 2 -7 -23 -22 -20। स्टूडेंट ये दोनों मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 -7 -5 4 -2 2 -1 -7, so -1 + 7 -1 + 7 that is +6 -4 -23 -4 + 23 that is 19 -3 -22 is -3 + 22 19 6 -26 + 20 26। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से जो 5x है उसमें 5 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे, सो इट विल बिकम 1/5 into this matrix -5 2 6 19 19 26। स्टूडेंट्स ये जो है माइन अपॉन में जो 5 है वो बाहर रख सकते हैं, so this may be your final step, but if you want that कि अपॉन का जो 5 है बाहर, ये 1/5 में, वो 1/5 अंदर ले ले मैट्रिक्स के अंदर, बिकॉज इट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन पैटर्न, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की 1/5 अंदर जो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इट विल लुक लाइक -5/5 -1 2/5 6/5 19/5 again 19/5 and 26/5। This way you can conclude further। जहाँ ये डिवाइड हो जाता है 5, उसको डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड नहीं हो पाएगा, एज इट इज अपॉन में रहेगा। सो इन बोथ द वेज वी कैन रिप्रेजेंट। तो दिस वे, दिस अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर ये क्वेश्चन था, कुछ मैट्रिक्स हमको देते हैं, इक्वेशन देते हैं इस प्रकार से, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करना है, जो मैट्रिक्स ढूंढना है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन I can say that in the previous question मैंने जो second method use किया था, same second method you can apply in this question। I would insist you to solve this same problem with the second method। अब previous question का जो मैंने second method दिखाया है वो प्रॉपरली इसके अंदर अप्लाई करना सेम। हाँ, खाली वहाँ जो हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अज्यूम किया था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, क्योंकि 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना पड़ा था, बिकॉज एवरीथिंग वाज गिवन इन द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। सिमिलरली इन दिस क्वेश्चन एवरीथिंग इज गिवन इन द ऑर्डर 3/2, सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है। तो आप जो मैट्रिक्स अज्यूम करोगे, जिस मैट्रिक्स को आपको फाइंड करना है, दैट इज मैट्रिक्स एक्स, that matrix X also you will assume in the order 3/2। ये ध्यान रखना, एलिमेंट ए बी सी डी जो भी हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं वो आपको ऑर्डर में ले लेने का। तो टोटल आपको 6 एलिमेंट ही चाहिए, क्योंकि 3/2 का मैट्रिक्स अज्यूम हो रहा है, तो रिक्वायर्ड 6 एलिमेंट होंगे। तो यू अज्यूम एक्स मैट्रिक्स आप अज्यूम कर लो, ए बी सी डी ई एफ, दैट्स इट।
और फिर आप इसमें सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ो, देख लो फाइनली आप प्रीवियस मेथड से एक्स मैट्रिक्स ढूंढ सकते हो कि नहीं, बट फर्स्ट मेथड इज कन्वीनियंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन दिस क्वेश्चन they have given one matrix A of order 2/3 और आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। पहले हमें A मैट्रिक्स दिया है गिवन 5 1 -4 3 2 0 एंड ट्रांसपोज का आपने डेफिनेशन समझा है। किसी भी मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज ढूंढना है तो ट्रांसपोज के लिए उसके रो और कॉलम को एक्सचेंज कर देना है। Corresponding rows are to be exchanged with corresponding column. With that, you may have different order of the matrix after finding its transpose. Transpose ढूंढने के बाद आपका जो मैट्रिक्स आएगा वो जरूरी नहीं है कि आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर में आए, ऑर्डर चेंज हो जाता है। हाँ, जो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को डिनोट करने के लिए ए यहाँ अपर सफिक्स में टी या तो डैश, हम दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। सो आपको ढूंढना है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स पहले तो मैं ए ट्रांसपोज ढूंढूंगा। दैट इज जो मैट्रिक्स है तो इसके रोज और कॉलम को आप एक्सचेंज कर देने हैं, करस्पॉन्डिंग रोज विद कॉलम्स। तो फर्स्ट रो बने फर्स्ट कॉलम 5 1 -4 and second row will become second column, that is 3 2 0। ये मुझे मिला है ए ट्रांसपोज। नाउ वी फाइंड ए ट्रांसपोज जो मिला है उसका भी ट्रांसपोज, क्योंकि ये ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स मिला है। उस पूरे का वापस से ट्रांसपोज 5 3 1 2 -4 0। So again the same way row will become column, corresponding row will become column। 5 3 first row will become first column, second row will become second column, third row will become third column, and as a result we got A transpose whole transpose, and that means the same matrix A we have derived। तो इससे ये पता चलता है that A transpose whole transpose is equal to A। ये ध्यान रखना है, ये नियम है, क्योंकि ट्रांसपोज ट्रांसपोज एक दूसरे को क्या कर देता है, कट। जैसे हम नॉर्मली माइनस एलिमेंट का भी माइनस वैल्यू ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, -5 और उसके पूरे का भी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर कट हो जाता है, इफेक्ट नील बन जाती है। उसी तरह से ये जो ट्रांसपोज
का पूरे का ट्रांसपोज है वो एक दूसरे को कट कर देता है, दैट इफेक्ट इज नलिफाइड एंड हेंस द ओरिजिनल मैट्रिक्स ए इज डिराइव्ड। ये आप एग्जाम्पल से आपने देख लिया। ओके, सो दिस नोट कीप इन माइंड। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है 6th, सेम है ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, खाली मैट्रिक्स आपको 3x3 ऑर्डर का दिया है। ओके, so you can do it by yourself. Question number 7th. Find A, B, C, that is element A, B and C, if this given matrix of 3x3 order is a symmetric matrix. Students, symmetric matrix का आपको definition मालूम होना चाहिए। What is a symmetric matrix? Different types of matrices के अंदर symmetric matrix हमने देखा है। If A is a given square matrix and if that A matrix is equals to A transpose, समझो हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वो ट्रांसपोज सिमिलर हो जाता है, दैट ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के साथ सेम आ जाता है, तो हम बोलते हैं दैट देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक कंडीशन था, वो आपको रिवाइज कराया मैंने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा बोला है, इफ दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम गिवन में लिखते हैं ए मैट्रिक्स 1 3/5 ए बी -5 -7 -4 सी 0, where A is symmetric matrix. This is also part of given. अब ये symmetric matrix है, therefore A should be equals to A transpose. And therefore first I will find A transpose. इसको मैं नंबर 1 करके यहाँ छोड़ता हूँ, पहले मैं A ट्रांसपोज ढूंढ लेता हूँ। वन 3/5 A B -5 -7 and -4 C 0, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑर्डर सेम रहेगा बिकॉज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 1 3/5 A B -5 -7, third row will become third column -4 C 0, and now this is A transpose, तो अब मैं उसको मैं नंबर सेकंड दे देता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं ए ट्रांसपोज और ए इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ए मैट्रिक्स here it will be transpose, so this A matrix 1 3/5 A B
-5 -7 -4 C0 इज इक्वल टू दिस ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो हमने बनाया है 1 B -4 3/5 -5 C A -7 0। सो अब ये दोनों साइड के मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के जो है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस comparing corresponding elements we are going to compare. So by comparing corresponding elements we get, देखो ये तो वन, ये पहला एलिमेंट ये भी वन है, इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमें वो एलिमेंट कंपेयर करना है जिसका वैल्यू हमें ढूंढना है। तो बी नेक्स्ट इज 3/5 दैट इज बी, तो हमको बी का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 3/5 इज इक्वल टू बी, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 3/5। इसके बाद तीसरा एलिमेंट ए को हम कंपेयर करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स -4 के साथ, ए इज इक्वल टू -4। उसके बाद वापस यहाँ नीचे बी वाला एलिमेंट दिख रहा है वो भी इक्वल टू 3/5 होने वाला है, तो ऊपर का बी का कंपैरिजन होके 3/5 आया है या नीचे का हम कंपैरिजन कर रहे 3/5 लाएंगे, आंसर तो वही होएगा, वही मिलने वाला है मतलब, तो वो रिपीट हो रहा है, वो एलिमेंट वापस से आ रहा है, तो अपने को देखने का जरूरत नहीं, अभी हमको आगे बढ़ना है, जो दूसरे वेरिएबल्स का वैल्यू जो हमको ढूंढना है उस पर हम आते हैं। ए मिला है, बी मिला है, अभी हम सी के ऊपर जाते हैं, तो ये रहा सी, डायरेक्टली देखो सी का वैल्यू किससे कंपेयर होगा -7, और आप जो लास्ट रो में भी देखो तो यहाँ पे भी सी है, वो सी को आप यहाँ से इसके साथ कंपैरिजन करके करस्पॉन्डिंग वैल्यू उसका आप ढूंढ सकते हो। सो एनी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यू कंपेयर आपको आंसर सेम ही मिलने वाला है, एंड हेंस सी का वैल्यू -7 मिल जाएगा। सो ए बी सी ये तीनों वेरिएबल आप देखो तो मैट्रिक्स के अंदर दो दो बार आए हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग पोजीशन पे, आई मीन टू से। सो एनी कंपैरिजन यू विल डू, फाइनली एबीसी का वैल्यू वही सेम मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस वे बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये पॉइंट भी आपको रिपीट हो रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन में देखने मिल रहा है, एंड देयर बाय यू कैन ऑब्टेन नाउ दिस एलिमेंट्स ए बी एंड सी। सो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन, फाइंड ए बी एंड सी। तो इस प्रकार से हमें ये ए बी और सी का वैल्यू मिल जाता है। इफ यू वांट then you can construct the matrix, given matrix, by replacing this a b and c values, hence given matrix will be, तो हमारा मैट्रिक्स जो है 1 3/5 और a है दैट इज -4, b -5 -7, b क्या है 3/5, -5 -7, -5 -7, और थर्ड रो -4 C0, -4 C that is -7 and 0। ये आप बना के रख सकते हैं, अदरवाइज आपको खाली एबीसी ढूंढने को बोला है तो ऑलरेडी हो चुका है, यू कैन कंक्लूड हियर ऑल्सो। So this way they can ask this type of question. Coming to the question number 8, which is based on skew symmetric matrix। अगेन मेरा बात skew symmetric matrix के
पॉइंट पे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे वाला एग्जांपल खाली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर था। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी होगा जब भी कोई भी मैट्रिक्स ए जो है इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। इसका मतलब आप समझ लेना, जब हम ट्रांसपोज करेंगे और वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का, वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और उसका एलिमेंट आपको ट्रांसपोज करने के बाद करस्पॉन्डिंग पोजीशन का एलिमेंट साइन में अपोजिट मिलता है, साइन में अपोजिट मिलता है, then that particular matrix A, which is the original matrix, will be known as skew symmetric matrix। इसका हम फर्दर स्पेसिफाई करते हैं तो इस तरह से हम बोल सकते हैं Aij is equals to माइनस AJI। सिंस ये आपको पता है, ये पूरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के थियरी का पार्ट वापस से जरा देख लेना, और उसको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल भी डिस्कस किया है। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो रो और कॉलम रिप्लेस हो जाएंगे, तो यहाँ ए आई जे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो बन जाएंगे ए जे आई, और माइनस इसलिए कि जो पोजीशन पे वो एलिमेंट होगा उस पे वो उस साइन को रिवर्स कर देगा, मतलब जो हमारा ट्रांसपोज निकलेगा उस पोजीशन पे वो एलिमेंट का साइन का डिफरेंस होगा, प्लस हो तो माइनस है, माइनस हो तो प्लस है। कौन से मैट्रिक्स के लिए? ए ट्रांसपोज के लिए। तो ये मैट्रिक्स जो आपको दिया है क्वेश्चन में, इसको बोला है उन्होंने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये एक्स वाई जेड फाइंड आउट करके बताओ। सो गिवन हम इसको लेट मैट्रिक्स ए अज्यूम करके 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 0, which is skew symmetric matrix, which is skew symmetric matrix. This is also given. Therefore, A matrix will be equal to minus A transpose. A matrix is equals to minus A transpose. तो हम पहले क्या करेंगे, A ट्रांसपोज ढूंढेंगे, A ट्रांसपोज ढूंढेंगे। तो A मैट्रिक्स जो भी है उसका ट्रांसपोज, चलिए A मैट्रिक्स 0 -5i x y 0 z 3/2 -√2 0। भाई बस ट्रांसपोज करना है, रो और कॉलम को रिप्लेस करो, एक्सचेंज करो। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 -5i x, second row will become second column y 0 z 3/2 -√2 0। ये आ गया आपका A ट्रांसपोज। इसको हम नंबर 2 बोलते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 हम 1 में इसको रख देंगे। 1 में मतलब कि मेरे पास मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स ए है
इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स इसमें रख देंगे। तो ए मैट्रिक्स जो है आपका 0 माइनस 5i एक्स वाई 0 जेड 3/2 माइनस रूट 2 0। राइट हैंड साइड में माइनस ए ट्रांसपोज के हिसाब से माइनस ए ट्रांसपोज जो हमने ढूंढा है वो लिख देंगे। और अब स्टूडेंट लेफ्ट राइट हैंड साइड में ये जो माइनस है वो हम अंदर ले लेंगे मैट्रिक्स में। एक्चुअली ये माइनस कुछ नहीं है तो माइनस 1 है, नथिंग इज देयर देन इट इज 1, बट वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग दिस 1, इट इज अंडरस्टूड। तो ये माइनस कुछ नहीं है 1 है, तो आप अभी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इट इज एज इक्वल एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो खाली आप माइनस अंदर ले लोगे तो सब एलिमेंट्स के साइंस चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स एज इट इज, right hand side this will be remain 0 minus y minus 3/2, this is 5i 0 root 2 minus x minus z 0 z. And now using concept of equality of two matrices, by comparing corresponding element we get, देखो अब हमको x y z ढूंढना है तो यहाँ डायरेक्टली x को कंपेयर करो इसके साथ, तो x विल बी इक्वल टू -3/2। फिर y का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन में ले लो, दैट इज 5i, और z का जो वैल्यू है उसको कंपैरिजन में ले लो √2। दिस वे वी विल गेट वैल्यू फॉर x y एंड z। आपको लास्ट में लगता है मैट्रिक्स बनाने का है तो बना के दिखा दो, बाकी आपको खाली x y z एलिमेंट्स पूछे हैं विच वी हैव ऑब्टेन्ड दिस वे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे था। सब मैट्रिक्स के टाइप्स आपको पता है तो आप प्रॉपरली यहाँ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चन प्रॉपरली प्रैक्टिस में लेना। हियर वी आर एंडिंग, थैंक यू।